Actually, circulatory system is broadly divided into three types. The first one is your single circulation. Second one is your partial double circulation. Partial double circulation. And the third one is your double circulation. Double circulation. So, in all the vertebrates, I think you all know कि what is vertebrates. जब भी हम animal kingdom पढ़ेंगे वहाँ आपको बताया जाएगा chordates and non-chordates और फिर chordates के अंदर vertebrates आते हैं. तो vertebra जितने भी vertebra हैं उनमें देखा गया कि they have these three type of circulation: single circulation, double circulation and partial double circulation या फिर incomplete double circulation भी बोलते हैं इसको. या फिर तुम पार्शियल बोल सकते हो या फिर इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन. तो बेसिकली you all know that there is in the vertebrates there is a single heart which is a hollow muscular organ. सिर्फ एक ही हार्ट होता है. There is a single heart which is a hollow muscular organ. In case of mammals, in case of humans, this heart is divided into 4 chambers. The upper chambers are known as auricles and the lower chambers are known as ventricles. So we have 4 chambers, 1, 2, 3, 4. 4 chambers. But in case of fishes, there is only 2 chambers, that is 1 auricle and 1 ventricle. If there is only 1 auricle and 1 ventricle, तो इधर इसी opening होगी. ठीक है? In case of fishes, 1 auricle, 1 ventricle. In case of mammals, 4. Mammals, including your humans. In case of amphibians and reptiles, अगर हम देखेंगे तो हमें दिखेगा incomplete, क्योंकि there are certain organisms where there is 2 ventricles but only 1 auricle. So if you see the incomplete double circulation, तो auricle जो है वो एक है, but ventricles जो है वो 2 हैं. बट वेंट्रिकल के बीच में ये जो सेप्टा होना चाहिए जो मैम ने यहाँ बनाया है इस तरीके से, ये इनकम्प्लीट है. इट्स ओनली लाइक दिस. सो दिस इज ऑरिकल, 1 ऑरिकल, 1 वेंट्रिकल एंड सेकेंड वेंट्रिकल. दैट मीन्स अगर इफ देयर इज नो सेप्टा, तो देयर इज not separation of your oxygenated and deoxygenated blood. So this is how when the human evolved, their heart is also evoluted. Let me share one image with you कि किस तरीके से हम देख सकते हैं fishes, amphibians, reptiles, birds and humans, इनमें किस तरीके से हमारा heart develop हुआ है. Just wait for a minute. Here I am sharing. You can see here hearts of different vertebrates. You can see here in the diagram, the heart of the different vertebrates are being mentioned. In case of fish, you can say that there is only 1 auricle and only 1 ventricle. तो ventricle से हमारा blood जो है वो बाहर जाएगा. इससे upside down दिखाया है. So if this is the auricle, this is the ventricle. I'm so sorry. इसको हम भी ventricle कर देते हैं. That will be easier to understand. Auricle से enter करेगा और ventricle से ऐसे बाहर चला जाएगा. In case of amphibians, you can see that they have 3 chambers in the heart. That means there are 2 auricles and 1 ventricles. In case of amphibians, you can see here number of chambers in the heart. Amphibians, they have 3, 2 auricles but only 1 ventricles. 2 auricles
two auricles are like this, but there is only one ventricles. सिर्फ एक ही ventricles है in case of amphibians, but in case of reptiles या तो हम उसको बोलते हैं 3 और incomplete 4 chamber. Incomplete 4 कैसा हुआ, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ एक ही ventricles था बच्चा, one auricle and this is second auricle. This is the condition in case of amphibians. But in case of reptiles, there is incomplete 4 chamber और 3 chamber. Incomplete 4 क्यों? क्योंकि ये जो सेप्टा है ये बनना शुरू हुआ है, वेंट्रिकल को डिवाइड करना शुरू हुआ है, बट ये कंप्लीट नहीं हुआ है. So in reptiles there are two auricles. There are two auricles. Just a minute, मैंने डायग्राम में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, तो हमको इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा. जस्ट अ मिनट, ये एक्चुअली मैं रेप्टाइल्स का बना रही थी. सो इन केस ऑफ एम्फीबियंस हमने देखा कि देयर आर टू ऑरिकल्स बट देयर इज वन वेंट्रिकल. दिस इज इन द केस ऑफ एम्फीबियंस. In case of fishes, they have one auricle and one ventricle. Fishes. When we talk about the reptiles, so reptiles में there are three chamber, or you can say incomplete four. That means it starts to be formed. बनना स्टार्ट हो गया है, सेप्टा वेंट्रिकल को डिवाइड करना स्टार्ट हो गया, बट कंप्लीट डिवाइड नहीं कर पाया है. दैट मीन्स ऑरिकल्स आर देयर, बट जो वेंट्रिकल्स हैं, वेंट्रिकल का जो सेप्टा है वो बनना शुरू हुआ है, बट कंप्लीट वेंट्रिकल को वो दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर रहा है. सो दिस इज वन ऑरिकल, दिस इज सेकेंड ऑरिकल, बट द वेंट्रिकल इज इनकम्प्लीट टू. So basically हम reptiles में बोलते हैं few of the reptiles they have 3 chambers and few reptiles they have 4 chambered. आपने हमेशा examples में देखा होगा crocodile 4 chambered heart. That means they have 2 auricles plus 2 incompletely divided ventricles. You can see here incompletely divided ventricles, but there are 2 auricles but the ventricle is incompletely divided. Incompletely divided. So all the vertebrates they have one heart, but the heart is either divided into 2 chambers, 3 chambers, 3 or incompletely 4 chambered or complete 4 chambered. That is your human and mammals, they have 4 chambered heart. That means this ventricle it's complete and there is 2 auricle and 2 ventricle. In case of mammals and in case of humans, there are 4 chambered. In case of apes also, birds also, they have complete 4 chambered heart. That is 2 auricle and 2 ventricles. Birds maybe. In case of fishes, they have only 2, 1 auricle and 1 ventricle. In case of reptiles, या तो 3 होता है या फिर incomplete 4. And in case of amphibians, they have also 3 chambered heart. So basically 3 chambered है, तो there is 2 auricle and 1 ventricle. You can easily see in the diagram. Is it clear to everyone? Yes? So all the vertebrates, जितने भी हमारे vertebrates हैं, all the vertebrates, they have only one heart, but the heart is either 2 chambered, 3 chambered, incompletely 4 chambered or complete 4 chambered. So we humans, mammals and the birds and humans, they have complete 4 chambered heart. That is the upper 2 are the auricles and the lower 2 are the ventricles. In case of fishes, they have only 2 chambered, 1 auricle and 1 ventricle. In case of amphibians, they have 3. In case of reptiles, either 3 or incomplete 4. Yes, Om? मैम वो सिंगल सर्कुलेशन, पार्शियल इनकम्प्लीट सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन
उनके बीच का डिफरेंस बताइए ना, हाँ, क्लियर वो भी नहीं बता रही हूँ। देखो ये हो गया क्या, थोड़ा सा स्पेस चाहिए। यस मैम। Double circulation that is found in the mammals, human, we have double circulation. The double circulation means the blood circulate 2 times. वो 2 बार हार्ट में एंटर करता है. One is your systemic circulation and the another one is your pulmonary circulation. I will explain you what is that. So basically first we will talk about double. अगर हमें double समझ में आ जाएगा तो हमें single समझ में आ जाएगा. Double circulation. Double circulation का मतलब है कि the blood enter heart 2 times. 2 times. How? If this is the heart, ठीक है, rough diagram मैंने बनाया है. This is the ventricle. This is your right auricle. This is your left auricle. This is your right ventricle. This is your left ventricle. Now, the deoxygenated blood from the various parts of the body, from the various organs of the body, is being connected by the vena cava, superior vena cava and the inferior vena cava, and they take the blood inside the heart. और वो heart में blood लेके आते हैं और किधर enter करते हैं? In the right auricle. तो ये right auricle जो है ये collecting system है. यहाँ पर ब्लड जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हैं फ्रॉम द वेरियस ऑर्गन्स टिश्यूज दे एंटर द हार्ट फ्रॉम द राइट ऑरिकल. यहाँ राइट ऑरिकल में ये एंटर कर गए. ठीक है, फ्रॉम द राइट ऑरिकल हाउ इट हैपेंस, कैसे कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो नीचे की तरफ जाएगा राइट वेंट्रिकल में, दैट इज सेपरेट पार्ट, वो भी हम पढ़ेंगे. फ्रॉम दिस राइट ऑरिकल द ब्लड, there is a door, ये डोर ओपन होता है और ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में आ गया. दिस ब्लड इज डीऑक्सीजनेटेड क्योंकि ये पूरे बॉडी से घूम के आया है एंड थ्रू द वेना कावा के थ्रू ये एंटर कर रहा है इन द राइट एट्रियम. नाउ दिस ब्लड हैज टू बी ऑक्सीजनेटेड ताकि ये फिर से हार्ट से पंप होके टू द वेरियस ऑर्गन्स के पास जाए. तो फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल देयर अराइजेस पल्मोनरी ट्रंक. यहां से पल्मोनरी ट्रंक आता है. पल्मोनरी ट्रंक एंड दिस पल्मोनरी ट्रंक carries this blood towards the lungs. Lungs के पास लेके गया in order to get oxygenated. All the arteries carry oxygenated blood except pulmonary artery. You can see here, pulmonary artery carries deoxygenated blood. पल्मोनरी आर्टरी ही एक ऐसा आर्टरी है ऑल ओवर द बॉडी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके लंग्स के पास लेके जा रहा है. तो एक बार तो वो हार्ट को एंटर किया, वो पहला सर्कुलेशन था, वहां से वो राइट वेंट्रिकल में आया, बट फिर से राइट वेंट्रिकल से निकल के वो लंग्स के पास चला गया. नाउ द ब्लड गेट्स ऑक्सीजनेटेड एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगेन एंटर द हार्ट थ्रू द, यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वो एंटर करेगा हमारे लेफ्ट ऑरिकल में और फिर वहां से आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से देयर इज अ मेन एरोटा अराइजेस जो फिर से पूरे बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स में सेल्स में टिश्यूज में ब्लड लेके जाएगा. तो द मीनिंग ऑफ द डबल सर्कुलेशन दैट द ब्लड एंटर्स द हार्ट ट्वाइस. एक बार एंटर हुआ डीऑक्सीजनेटेड, फिर ऑक्सीजनेटेड होने के लिए वो लंग्स के पास गया, लंग्स से ऑक्सीजन लिया क्योंकि यू नो दैट द रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स के पास ऑक्सीजन है. ऑक्सीजनेटेड ब्लड देन एंटर्स योर लेफ्ट ऑरिकल, फिर लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल एंड देन
अगेन थ्रू आउट द बॉडी. तो दिस इज योर डबल सर्कुलेशन. एक है सिस्टमिक सर्कुलेशन और एक है पल्मोनरी सर्कुलेशन. सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या है? राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल, फिर वहां से लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. बट जो हमारा राइट वेंट्रिकल है वो कहाँ जाता है? पल्मोनरी सर्कुलेशन भी करता है. थ्रू द पल्मोनरी ट्रंक इट गोज टू द लंग्स एंड थ्रू द पल्मोनरी वेन्स दे एंटर द लेफ्ट ऑरिकल. तो जस्ट लाइक योर पल्मोनरी आर्टरी carry deoxygenated blood, your pulmonary veins are the only veins which carry oxygenated blood. ये भी important point है. Pulmonary artery deoxygenated blood you carry करता है. This is an exception. सारे arteries oxygenated blood carry करते हैं except pulmonary artery, and all the veins carry deoxygenated blood except pulmonary veins. ये carry करता है oxygenate. So in double circulation there is two type of circulation. One is systemic circulation and the another one is your pulmonary circulation. Clear everyone? तो हमारे बॉडी में डबल सर्कुलेशन है. एक पल्मोनरी सर्कुलेशन भी है जो राइट वेंट्रिकल से लंग्स के पास जाता है, फिर थ्रू द पल्मोनरी वेन्स वो लेफ्ट ऑरिकल को एंटर करता है. तो 2 बार ब्लड एंटर हुआ. नाउ सिंगल सर्कुलेशन. सिंगल सर्कुलेशन की अगर मैं बात करूं तो सिंगल सर्कुलेशन आपको देखने के लिए मिलेगा. हम फिश का एग्जाम्पल ले लेते हैं. You all know कि फिश के पास क्या है? जैसे हमारे पास लंग्स है, उनके पास लंग्स नहीं होते. दे हैव गिल्स. तो फिश के पास गिल्स हैं, ठीक है. और जो ब्लड होता है वो सिर्फ एक बार आता है. यहां आया, ठीक है. यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है क्योंकि गिल्स ने ऑक्सीजन दैट इज डिसॉल्व्ड इन एयर उसको लिया है और फिर से ये वापस बॉडी में चला जाता है. तो सिर्फ एक बार वो एंटर कर रहा है. हार्ट को एक बार ही एंटर कर रहा है. गिल से हार्ट में सिर्फ एक बार आ रहा है, सिर्फ एक बार एंटर कर रहा है. ऐसा नहीं है कि जब वो डीऑक्सीजनेटेड होगा तो फिर से वो गिल्स के पास जाएगा फिर हार्ट के पास जाएगा. ऐसा नहीं होता है. वो हार्ट को सिर्फ 1 टाइम ही एंटर करता है. एंड दिस इज योर सिंगल सर्कुलेशन. In fishes, the heart pump out deoxygenated blood, which is oxygenated by the gills. Heart जो है उसने deoxygenated blood को पंप किया. मैं ऐसे दिखा देती हूँ. ये जो है तुम्हारा ये deoxygenated blood है. ये deoxygenated blood है. ये deoxygenated blood हार्ट ने पंप किया और ये गिल्स के पास गया और अब ये यहाँ पर ये गिल्स है, ये ऑक्सीजनेटेड हो गया. और ऑक्सीजनेटेड होने के बाद ये दोबारा हमारे हार्ट में नहीं जाएगा. जिस तरीके से डबल सर्कुलेशन में फिर से वो हार्ट के दूसरे चेंबर में एंटर कर रहा था. बट हमने क्या पढ़ा कि फिश के पास सिर्फ एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल है. यस और नो अनिरुद्ध? तो दूसरे चेंबर में एंटर करने की बात ही नहीं होती है. तो फिश में फॉर एग्जाम्पल फिशेज में the heart it pumps the deoxygenated blood which goes to the gills. गिल्स में जा रहा है जहां पर उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा है which is oxygenated by the gills, क्योंकि गिल्स उसको ऑक्सीजनेटेड करने में हेल्प कर रहा है क्योंकि गिल्स के पास लंग मतलब फिशेस के पास लंग्स नहीं है, उनके पास गिल्स हैं. एंड सप्लाई टू द बॉडी पार्ट from where deoxygenated blood is returned again to the heart. हार्ट में सिर्फ एक बार एंटर कर रहा है बट हमारे बॉडी में हार्ट में 2 बार एंटर करता है ब्लड, इसलिए हम इसको डबल सर्कुलेशन कर रहे हैं. बट यहाँ पर देखो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स के पास आया. गिल्स के पास गिल्स टेक द ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन एयर, उसको एक्सचेंज कर लिया, ऑक्सीजनेटेड हो गया वो ब्लड. एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज बीइंग कैरिड टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. अलग अलग पार्ट में चला गया बट वो लौट के फिर हार्ट के पास नहीं आ रहा है. तो हार्ट के पास सिर्फ एक बार गया है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? सिंगल सर्कुलेशन. कौशिकी इज इट ओके बेटा? समझ में आ रहा है? यस मैम. बस इतना ही आपको याद करना है. सिंगल सर्कुलेशन, हार्ट के पास ब्लड सिर्फ एक बार जाएगा, वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर आया,
ऑक्सीजनेटेड हो गया गिल में, फिर वो दोबारा उसके पास नहीं जा रहा है, जैसे हमारे लंग्स से हमने फिर से लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड लेके आए थे, वो फिर से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में चला जा रहा है, एंड दिस सिस्टम इज कंटिन्यूड। अब पार्शियल क्या होता है, इनकम्प्लीट क्या होता है? यस ओम। मैम वो बोलो। जो पल्मोनरी आर्टरी वाला एक्सेप्शन है जहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, मतलब जिसके थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, तो मैम फिर वो मतलब वो क्यों है, मतलब अच्छा। वो तो ऑक्सीजनेटेड लेके जाएगा ना। अभी तुम यही देखो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट है, एक बार ब्लड पंप कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसने ब्लड को पंप किया। अभी मैंने तुम्हें बताया ही नहीं है कि ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन क्या होता है, ये नेक्स्ट टॉपिक है, कल हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, जैसे ही ब्लड यहाँ पर जमा हुआ इस एरिया में, और थोड़ा अच्छे से बताने की कोशिश करती हूँ, राइट एट्रियम में ब्लड एंटर किया फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गन्स, हर जगह से ब्लड आया थ्रू द वेना कावा। वेना कावा मतलब होता है बहुत सारे वेन्स एक साथ मिलकर बड़ा सा वेन्स बना दिए, तो उसको बोलते हैं वेना कावा। देयर आर टू वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा जो ऊपर के पार्ट से आता है, और इंफीरियर जो नीचे के पार्ट से आता है। दोनों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके हार्ट के पास आ गए। अभी हार्ट दोबारा से उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही पंप करके क्या करेगा? वो तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और हमारे सेल्स को, हमारे टिश्यूज को, हमारे ऑर्गन के डिफरेंट पार्ट्स को, हर सेल्स को चाहिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो वी नीड टू, यहाँ पर भी गिल्स ने क्या किया है? ऑक्सीजनेट किया है, बट ऑक्सीजनेट करने के बाद उसने सिर से हार्ट के पास नहीं भेजा, उसने डिफरेंट पार्ट्स पे भेज दिया, डिफरेंट पार्ट। बट हियर एज वी हैव लंग्स, हमारे पास गिल्स नहीं, हमारे पास लंग्स है, तो जैसे ही यहाँ पर बहुत सारा ब्लड आया, प्रेशर इंक्रीज हुआ, तो ये जो हमारा डोर है, ये कौन सा डोर होता है वो सब भी हम बात करेंगे, अभी सिर्फ डोर बता रही हूँ, ये ओपन हो जाता है और यहाँ से ब्लड इधर आ जाता है राइट वेंट्रिकल में। अभी तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसका हम पंप करके करेंगे भी क्या? तो हमें क्या करना है, इसको ऑक्सीजनेटेड करना है। ऑक्सीजनेटेड यहाँ भी हुआ है थ्रू द गिल्स इन केस ऑफ फिशेस ऑल्सो, बट इन केस ऑफ ह्यूमंस वी हैव लंग्स। तो यहाँ राइट वेंट्रिकल से जो आर्टरी जा रहा है, ये आर्टरी ही है ना, क्योंकि ये ब्लड लेके जा रहा है, लेके नहीं आ रहा है। लिसन केयरफुली ओम, लेके जा रहा है तो इसका नाम तो पल्मोनरी आर्टरी ही होगा, यस और नो? मैम लेकिन अगर कोई ब्लड लेके आएगा तो फिर कहीं से तो लेके ही आ रहा है। नहीं नहीं, ये पल्मोनरी, यहां से अगर लंग्स में जा रहा है तो नाम वहां से आया पल्मोनरी, ठीक है, बट लंग्स के पास ब्लड हार्ट से जा रहा है, लेके इधर से जा रहा है, तो जो भी हार्ट से ब्लड लेके बाहर निकलता है हम उसको आर्टरी बोलते हैं, और जो वापस लेके आता है उसको वेन्स बोलते हैं। यस मैम। तो यहाँ भी हमारा जो राइट वेंट्रिकल है वो ब्लड को कैरी करके लेके जा रहा है लंग्स के पास, बट ये ब्लड कैसा है? सारे आर्टरीज इन आवर बॉडी, ऑल द आर्टरीज इन आवर बॉडी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी के पास क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ये एक एक्सेप्शन है कि हर आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यूज कैरी करता है, बट पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यूज करता है। अब लेके आ रहा है लंग से, अब लंग से लेके आके एंटर कर रहा है हार्ट में, तो जब वापस से आ रहा है तो इधर मैंने वेना कावा बोला है, मैंने वेन्स बोला है, तो इसको भी मैं वेन्स ही बोलूंगी, तो ये भी पल्मोनरी वेन्स है। बट ये कैसा वेन्स है? सारे वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, बट ये एक ऐसा वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यूज करता है, इसीलिए हम कहते हैं दिस इज एन एक्सेप्शन। ऑल द आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी है वो, हम उसको वेन्स नहीं बोल सकते क्योंकि वो ब्लड लंग्स के पास लेके जा रहा है, और जो लंग से लेके आ रहा है उसको हम आर्टरी नहीं बोल सकते कि अगर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाएगा। हार्ट से जो ब्लड वेसल्स निकलते हैं उसको हम हमेशा आर्टरी बोलते हैं, और जो वापस हार्ट के अंदर ब्लड लेके आ रहे हैं उनको हम वेन्स बोलते हैं। डिफरेंट ऑर्गन्स में भी जो उनके अंदर जाता है और वे बहुत सारे कैपिलरीज बन जाते हैं, तो वो आर्टरीज डिवाइड करता है, आर्टरी डिवाइड टू आर्टेरियोल्स, आर्टेरियोल्स डिवाइड्स टू फॉर्म द फाइन कैपिलरीज, फिर ये फाइन कैपिलरीज ज्वाइन करके वेन्यूल्स बनाते हैं और फाइनली वेन्स बनाते हैं। तो हम अपने उस कॉन्सेप्ट को क्लियर हम चेंज नहीं कर सकते, तो हम इसको भी आर्टरी ही बोलेंगे, बट हमने क्या कह दिया
ये एक एक्सेप्शन है, जस्ट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, कि बच्चे कंफ्यूज नहीं हो जाए। उन्होंने हमेशा से पढ़ा है कि आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। नाउ इट्स क्लियर टू एवरीवन? जल्दी तो फिर अगर वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होगा तो क्या होगा? अभी आगे पढ़ेंगे। इनकम्प्लीट, अभी तो सिंगल और डबल ही बताया, ठीक है? अभी आ जाए इनकम्प्लीट पे, ठीक है? चलो, तो सिंगल सर्कुलेशन में समझ में आ गया कि हार्ट के पास ब्लड सिर्फ एक बार जाता है। डबल सर्कुलेशन में एक ही ब्लड दो बार हार्ट के पास जाता है, फिर फाइनली डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में सर्कुलेट होता है। अब द थर्ड वन इज योर इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट में क्या होता है, जैसे हम एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की बात करेंगे तो वहां पर भी जो लेफ्ट एट्रियम होगा वो रिसीव करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि वहां पर भी हमने 3 चेंबर पढ़ा है। हमने पढ़ा है दे हैव 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल्स। चले रब द बोर्ड, स्पेस तो चाहिए। तो हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में 2 सर्कुलेशन होता है इन ऑर्डर टू कंप्लीट द डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन कंसिस्ट ऑफ 2 पाथवेज। One is your systemic. Systemic circulation from auricles to ventricles. And the second one is your pulmonary circulation. Pulmonary circulation. ठीक है? ये हमारे 2 सर्कुलेशंस होते हैं इन डबल सर्कुलेशन। लेट मी रब द बोर्ड। फर्स्ट लिसन, अभी इनकम्प्लीट सर्कुलेशन किधर होगा? हमने एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में देखा कि दे हैव 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल और पार्शियली डिवाइडेड वेंट्रिकल, मतलब इनकम्प्लीट 4, पूरा वेंट्रिकल 2 भाग में डिवाइड नहीं हुआ है। तो दे हैव यूजुअली 3 चेंबर। इन केस ऑफ एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा तो आपको दिखेगा अच्छे से, तो लेट इट ड्राई, तब तक हम बातें कर लेते हैं। तो बेसिकली इन केस ऑफ नाउ सिंगल सर्कुलेशन सिर्फ फिश में देखने को मिलेगा, डबल सर्कुलेशन आपको मैमल्स में मिलेगा और बर्ड्स में मिलेगा जिनके पास 4 चेम्बर्ड हार्ट है। लेकिन जब हम रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस की बात करेंगे कि दे हैव ओनली 3 और इनकम्प्लीट 4, सो देयर इज अ चांस ऑफ मिक्सिंग ऑफ प्योर एंड इम्प्योर ब्लड, और इन द अदर वर्ड यू कैन से दैट देयर इज चांस ऑफ मिक्सिंग ऑफ डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एज amphibians and reptiles they have 3 chambered or incomplete 4. So they have 2 auricles but the ventricle is same. ठीक है? So this is your right auricle, this is your right left auricle, and this is your ventricle. This is your ventricle. ठीक है? So here also the blood comes from the different organs and enters the right atria, और right atria से वो blood जाएगा ventricles में। वेंट्रिकल से फिर वो ब्लड किधर जाना चाहिए? लंग्स के पास जाएगा फॉर द एक्सचेंज ऑफ द ऑक्सीजन। तो व्हेन द ब्लड, यहाँ पर बहुत सारा ब्लड हो चुका है, 2 कलर यूज कर लेती हूँ। यहाँ पर ब्लड बहुत सारा इकट्ठा हो गया, ब्लड का प्रेशर हुआ, क्योंकि यू नो दैट हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसकी वजह से ये पुश होता है। तो ये ब्लड यहाँ से पुश होके वेंट्रिकल में चला गया। नाउ यहाँ पर अभी थोड़े से जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रह गया और थोड़ा सा जो है वो लंग्स के पास चला गया। जरूरी नहीं है कि कंप्लीट, ठीक है? अभी जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, वो ऑल्दो लेफ्ट ऑरिकल को एंटर तो करेगा, बट वहां से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर आएगा? वेंट्रिकल में आएगा, बट यहाँ आकर मिक्स हो जाएगा। ब्लू कलर ले लेती हूँ। तो जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है,
वो वेंट्रिकल में आके मिक्स हो रहा है बिकॉज देयर इज नो सेप्टा टू सेपरेट द वेंट्रिकल्स इनटू कंप्लीट सेप्टा नहीं है। सेप्टा का मतलब होता है बच्चा, बायोलॉजी में अगर कहीं भी सेप्टा वर्ड यूज किया जाता है तो सेप्टा का मतलब होता है वॉल, ठीक है, हमेशा याद रखना, सेप्टा इज द वॉल, कोई भी वॉल। तो वेंट्रिकल्स के बीच में वॉल नहीं है कंप्लीट, इसलिए ये राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में डिवाइडेड नहीं है। अगर नहीं डिवाइडेड है तो व्हाट विल हैपन, देयर विल बी द मिक्सिंग। अभी यहाँ पे क्या होगा, इफ वी टॉक अबाउट द एम्फीबियंस एंड द रेप्टाइल्स, तो जो हमारा लेफ्ट एट्रियम है वो रिसीव करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहीं से भी कर सकते हैं, क्योंकि हम रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस की बात करते हैं, किसी के पास गिल्स है, किसी के पास लंग्स है, तो कोई स्किन से ही रेस्पिरेशन करता है, तो ईदर फ्रॉम द गिल्स, ईदर फ्रॉम द लंग्स, ईदर फ्रॉम द स्किन, आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एंटर करेगा किधर, बताओ किधर करेगा, लेफ्ट एट्रियम में। और जो तुम्हारा राइट एट्रियम है वहां पर क्या आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, बट दे गेट मिक्स्ड अप इन अ सिंगल वेंट्रिकल, क्योंकि वेंट्रिकल तो सिंगल है, वेंट्रिकल के पास कंप्लीट सेप्टा है ही नहीं, तो इन द वेंट्रिकल देयर इज मिक्सिंग, there is mixing of oxygenated and deoxygenated blood. So this blood is carried either to the lungs or to the gills और टू द स्किन, किधर पे जाएंगे और फाइनली वो हमारे लेफ्ट ऑरिकल को एंटर करेगा, और फिर वहां से कहाँ आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो एंटर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रिया और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स, फ्रॉम द वेरियस ऑर्गन्स, दे विल एंटर द right auricle, but in the ventricle as there is no septa, so they get mixed up in the single ventricle which pump out mixed blood. अब ये mixed blood pump कर रहा है क्योंकि यहाँ पर मिक्सिंग है, देखो मैंने ब्लू से भी दिखाया है that is deoxygenated, रेड से भी दिखाया है that is oxygenated। अब ये वेंट्रिकल क्या करेगा, यहाँ से जैसे पल्मोनरी आर्टरी निकलता था वैसे ही हमारा मेन एरोटा भी आता है। अभी मेन एरोटा क्या करता है, पूरे बॉडी पार्ट्स में ब्लड लेके जाता है, बट नाउ इन दिस केस, इन केस ऑफ एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, द मेन एरोटा विल कैरी मिक्स्ड ब्लड, दैट इज ऑक्सीजनेटेड भी है और डीऑक्सीजनेटेड भी है। तो इस तरह का जो हमारा सर्कुलेशन होता है इसको हम इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, जिसमें मिक्स्ड ब्लड का मतलब है इट कंसिस्ट ऑफ बोथ द ऑक्सीजनेटेड एंड द डीऑक्सीजनेटेड blood, mixed blood. So this type of circulation in which mixed blood is circulated is known as incomplete double circulation. Clear everyone? Yes ma'am. Incomplete double circulation, क्योंकि यहाँ पर भी ब्लड जो है 2 times हार्ट में आया है, बट यहाँ पर सेपरेशन नहीं है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, वेंट्रिकल्स में वो मिक्स हो जा रहा है क्योंकि वेंट्रिकल में सेप्टा नहीं है। दे हैव 3 ऑरिकल, they have 3 ऑरिकल नहीं, 3 चेम्बर्स, 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल, और ईदर 2 ऑरिकल and 2 incomplete ventricle. So where single circulation is found, क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में कि सिंगल सर्कुलेशन कहाँ होगा, तो सिंगल सर्कुलेशन इन फिशेज ओनली, मेक अ नोट ऑफ इट। और हमारा इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, amphibians and reptiles. And double circulation in case of birds and mammals. Double circulation. Birds. Write it down. This is all about the circulatory
pathways in case of vertebrates. 3 circulatory pathways: single circulation, incomplete double circulation, and double circulation. Your heart is a hollow muscular organ which is made up of cardiac muscles, a special type of a muscle, myocardium. और you know that there are 3 germ layer. I don't know कि ये तुम्हें पढ़ाया गया है अभी या नहीं, एनिमल टिश्यूज नहीं हुआ है तो नहीं पढ़ाया गया है. एक्चुअली हमारे बॉडी के, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ क्योंकि आगे बताने के लिए मुझे इसकी जरूरत है. हमारे बॉडी में जब भी हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं ना बच्चे, तो सिर्फ 3 सेल्स के लेयर्स होते हैं. मान लो एम्ब्रियो में बस ऐसे 3 लेयर सेल्स पहले बनते हैं और इसी से हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स बन जाते हैं. ये 3 लेयर्स जो होते हैं उसको हम जर्म लेयर्स बोलते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. तो योर हार्ट ओरिजिनेट फ्रॉम द मेसोडर्म, और हार्ट ही हमारा सबसे पहला ऑर्गन है जो बन के तैयार हो जाता है इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी. जब भी 3-4 वीक्स होते हैं ना, जब भी बेबी डेवलप करता है, फीटस डेवलप करता है इन द वूम्ब ऑफ द मदर, तो हार्ट बीट्स आ जाते हैं. ठीक है, तो इट डिराइव्स, इट ओरिजिनेट्स, हार्ट जो ऑर्गन है, जितने भी ऑर्गन है सब इन्हीं 3 जर्म लेयर्स से बनते हैं इन द एम्ब्रियो. फॉर एग्जांपल, इफ दिस इज एम्ब्रियो, योर एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स. जो सबसे बाहर वाला है एक्टोडर्म, ये आगे हम दूसरे चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे. द मिडिल वन इज योर मेसोडर्म या मेसोडर्म, एंड दिस इज योर एंडोडर्म. Your heart originates from the mesoderm. ये mesoderm जो बीच वाला लेयर है सेल का, वहां से हमारा हार्ट बना है. एंड हार्ट इज अ hollow muscular organ, एकदम खाली सा है, मस्कुलर ऑर्गन है, विच इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, स्पेशल मसल्स नोन एज कार्डियक मसल्स. जब हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे, वहां जब मैं आपको टाइप्स ऑफ मसल्स बताऊंगी, तो वहां मैं आपको 3 टाइप्स ऑफ मसल्स बताऊंगी. स्केलेटल मसल्स, जिसको आप अपने अकॉर्डिंग मूव कर सकते हो, जैसे मैं बोल रही हूँ, चल रही हूँ, डांस कर रही हूँ, तो वो मेरे स्केलेटल मसल्स हैं. स्मूथ मसल्स जो हमारे डिफरेंट इंटरनल ऑर्गन्स के पास हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है. दे आर इनवॉलेंट्री टू अस, दे आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम. उनका जो मूवमेंट है वो अलग तरीके से कंट्रोल होता है, वो हमारे बस में नहीं है कि अभी मैंने सोचा मैं अभी सांस नहीं लूंगी, रोक लेती हूँ थोड़ी देर के लिए, या फिर मैंने खाना तो खा लिया है बट प्लीज अभी तुम डाइजेस्ट मत होना, थोड़ी देर बाद होना क्योंकि रात में मुझे भूख लगेगी. ऐसा नहीं होता है. दे आर ऑटोमेटिक, दे आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल. एंड द थर्ड वन इज योर कार्डियक मसल. सबसे तीसरा जो है वो हमारा कार्डियक मसल्स है. एंड दीज कार्डियक मसल्स का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कि दे आर ब्रांच्ड. ये ब्रांच्ड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं. इफ आई विल ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द कार्डियक मसल, this is one cell. इसके नीचे अगर दूसरा सेल भी है तो वो भी ऐसे ज्वाइन रहेगा साइड वाले सेल के साथ. तो दे आर ज्वाइंड टू ईच अदर. ब्रांच्ड होता है, सिंगल सिंगल सेल नहीं होते. सेल जो होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं. एंड इन बिटवीन द 2 सेल्स, तो मैं इसको यहां से ड्रॉ करती हूँ, तो इन बिटवीन द 2 सेल्स ये जो स्पेस होता है वहां से भी वो ज्वाइन होते हैं. दैट इज योर इंटरकैलेटेड डिस्क, विच इज एन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्डियक मसल्स, कि वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेटेड डिस्क. एक और पहला है कि ये ब्रांच्ड होते हैं, वो सिंगल 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 सेल नहीं होते हैं, सारे सेल्स आपस में ऐसे ज्वाइन होते हैं. तो ऑल द सेल्स ऑफ द कार्डियक मसल्स दे आर ब्रांच्ड. अगर हम कार्डियक मसल्स की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, कार्डियक मसल की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, तो फर्स्ट स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है कि दे आर ब्रांच्ड. एंड द सेकंड, इन बिटवीन द 2 cells, the 2 cells are joined to each other. The 2 cells are joined to each other with the help of intercalated disc. जो ऊपर नीचे के या फिर इसके नीचे भी दूसरा सेल आएगा, इसके नीचे भी अगर कोई दूसरा सेल आता है तो यहाँ पर भी होगा intercalated disc.
तो ब्रांच होते हैं एंड इंटरकैलेटेड डिस्क इज एन important characteristic of only cardiac muscles. That means all the cells are joined to each other as well as they are branched. Clear? Now, as I told that your heart is a hollow muscular organ and the size of the heart is your closed fist. बस इतना ही बड़ा है. आप अपने फिस्ट को ऐसे क्लोज कर लो, बस इतना ही सा साइज है हमारे हार्ट का. And it's present in between the two lungs in the thoracic region, and that region is known as mediastinum. मैं लिख देती हूँ अभी. So let me clean the board first. So your heart is mesodermally derived organ. ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ऐसे भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए. तो your heart is mesodermally originated. ये मेसोडर्म लेयर ऑफ द जर्म सेल से ओरिजिनेट होता है. It's of the size of the closed fist and it's a hollow muscular organ. ये मसल से ही बना हुआ है पूरा का पूरा. And it present in the thoracic cavity, thorax, chest region in between the two lungs. And the place where this heart is present, that is known as mediastinum. So we are talking about heart. The first important point is mesodermally originated. Mesodermally originated. ठीक है? This is the first point. The second point of the heart is that it's a hollow muscular organ of the size of fist. ऐसे ही होता है. ठीक है? मेसोडर्म ओरिजिनेटेड है, हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है, and where it is present, it's present in the heart is present in the mediastinum और ये मेडियस्टिनम कुछ नहीं होता है, इट्स द स्पेस बिटवीन द टू लंग्स. मेडियस्टिनम का मतलब होता है स्पेस बिटवीन टू लंग्स. तो दोनों लंग्स के बीच में हमारा हार्ट प्रेजेंट है. मेडियस्टिनम इज आल्सो नोन एज थोरैसिक कैविटी. थोरैसिक का मतलब होता है चेस्ट रीजन. जो ये बायोलॉजिकल टर्म हम यूज कर रहे हैं उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ. थोरैसिक का मतलब होता है चेस्ट रीजन. जो हमारा चेस्ट रीजन होता है उसी के वहीं प्रेजेंट है थोरैसिक रीजन. और बायोलॉजिकली हम उसको बोलते हैं मेडियस्टिनम. और मेडियस्टिनम का मतलब होता है द स्पेस बिटवीन द टू लंग्स. दो लंग्स के बीच में जो हमारा स्पेस है उसका हम ये कहते हैं. ठीक है? इट इज द साइज ऑफ द फिस्ट. क्लोज फिस्ट हम बोलते हैं. क्लोज्ड जब भी आप ऐसे मुट्ठी बांधते हो ना वैसा ये दिखता है. क्लोज फिस्ट लिखो तो ज्यादा अच्छा है. नाउ व्हेन यू सी द डायग्राम ऑफ द हार्ट, थोड़ा सा वो लेफ्ट के साइड टिल्टेड होता है. थोड़ा सा वो लेफ्ट के साइड टिल्टेड होता है. ठीक है? This is your right auricle, this is your left, this is your right ventricle, this is your left ventricle. अभी हमारा हार्ट इतना इम्पोर्टेंट ऑर्गन है तो जरूर ये किसी ना किसी मेम्ब्रेन से सराउंड होता होगा. इतना अच्छा और इतना इम्पोर्टेंट ऑर्गन है. अच्छा नहीं, इम्पोर्टेंट ऑर्गन है एंड इट्स अ मस्कुलर ऑर्गन. तो दैट इज बीइंग सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेन्स. हमारा हार्ट जो है वो मेम्ब्रेन से सराउंडेड है. I will draw. इस तरीके का मेम्ब्रेन है. The membrane surrounding the heart is known as pericardium. ठीक है? उसका नाम है pericardium. तो membrane
surrounding the heart is, this is your pericardium. पेरिकार्डियम, ये पेरिकार्डियम भी जो है ये दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर। द आउटर लेयर, चलो किसी और कलर से बनाते हैं, ये तुम्हारा आउटर लेयर, कुछ नहीं है, यहाँ पे एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट है लाइक दिस, स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स हमेशा बताया एनिमल टिश्यूज 4 टाइप्स के होते हैं, एपिथेलियल, कलेक्टिव, नर्वस और मस्कुलर। तो जो ये टिश्यूज हैं वो ऐसे प्रेजेंट है एज अ प्रोटेक्टिव लेयर, इस तरीके से पूरे सरफेस को कवर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अंदर के साइड भी प्रेजेंट होते हैं, यहाँ अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। आउटर वाले को हम बोलते हैं आउटर पेराइटल और इनर वाले को बोलते हैं विसरल लेयर। विसरल वर्ड यूज करते हैं हम बच्चा, विसरल फैट, आप ऐसे वर्ड भी सुनते होंगे। जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं उनका अंदर का जो लेयर होता है ना, सेल के अंदर का लेयर, उसको हम बोलते हैं विसरल लेयर। तो हियर योर पेरिकार्डियम व्हिच इज द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द हार्ट is divided into outer parietal layer, outer parietal and inner visceral. Inner visceral. और इसके बीच में भी ये पूरा का पूरा मस्कुलर स्ट्रक्चर है तुम्हारा हार्ट, यहाँ पर भी पूरे मसल से प्रेजेंट है, पूरा का पूरा मसल से ही कवर है, और इसको हम बोलते हैं मायोकार्डियम, जिसका दूसरा नाम है कार्डियक मसल्स। तो दिस वन इज योर मायोकार्डियम, या फिर आप इसको बोल सकते हो कार्डियक मसल्स, ठीक है। तो ये जो हमने स्ट्रक्चर और डायग्राम बनाया है कि हमारा जो मेम्ब्रेन कवर करता है हार्ट को, उसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। और जो पेरिकार्डियम होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज योर आउटर पेराइटल एंड इनर इज योर विसरल। तो ये 2 तरीके का है। एंड जो हमारे ये सेल्स हैं ये कुछ भी नहीं है, दे आर सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स। ये एपिथेलियल सेल्स हैं। एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम अगर तुम ऐसे डिवाइड करो तो हार्ट में 3 लेयर्स हैं। जैसे मैंने बताया पेरिकार्डियल, देखो बच्चा अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है तो तुम ऐसे देख लो एक बार। पेरिकार्डियम 2 तरीके का है, आउटर पेराइटल एंड इनर विसरल। आउटर पेराइटल एंड इनर विसरल, ठीक है। और इन दोनों के बीच में देयर इज अ फ्लूइड। अगर मैं ऐसे फिर से डायग्राम बनाऊं तो अगर ये मेरा आउटर लेयर है और ये मेरा इनर लेयर है, तो ये आउटर और इनर लेयर के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। हार्ट को भी क्या है, शॉक से एब्जॉर्ब करना, प्रोटेक्ट करना है। हार्ट भी आपका बहुत डेलिकेट ऑर्गन है। तो जिस तरीके से आपने पढ़ा होगा रेस्पिरेशन में लंग्स के बारे में, वैसे ही यहाँ पर इन बिटवीन द 2 पेराइटल, रिकॉर्डिंग बंद है क्या? ये ऑन है बच्चा। सो बेसिकली इन बिटवीन द आउटर पेराइटल, पेराइटल का मतलब दूसरे भाषा में ऐसा समझ लो कि सबसे बाहर का लेयर है ना, तो ये थिक है, फाइब्रस स्ट्रक्चर है।
जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, और इनर विसरल लेयर है जो इनर हार्ट के सरफेस को भी कवर करता है। और ये सब किस चीज से बने हुए? दे आर मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स एंड इन बिटवीन द आउटर पैराइटल एंड इनर विसरल लेयर, ये सेम वर्ड मैं आपको ही पढ़ाऊंगी जब मैं आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ाऊंगी, वहां किडनी में भी होता है आउटर पैराइटल और इनर विसरल। मैंने बोला कि जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी में, उन सबके ऊपर ये सेल्स के लेयर प्रेजेंट होते हैं। So in between the outer parietal and inner visceral, there is a fluid present. There is a fluid present known as pericardial fluid. घबराओ मत, मैं इमेजेस शेयर करूंगी, अच्छे वाले इमेजेस आपको, ठीक है? पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। इस डायग्राम में ही जैसे मैंने ये बीच वाला लेयर है बच्चा, इसको मायोकार्डियम बोला, उसी तरीके से जो सबसे बाहर वाला है उसको आप एपिकार्डियम बोल सकते हो, और जो ये सबसे अंदर वाला है उसको आप एंडोकार्डियम बोल सकते हो। तो योर हार्ट इज मेड अप ऑफ 3 layers ऑफ सेल्स। योर हार्ट, द वॉल ऑफ हार्ट इज मेड अप ऑफ 3 layers। हार्ट का वॉल 3 layers से बना हुआ है। एंड व्हाट आर दोस 3 layers? व्हाट आर दोस 3 layers? जो ये सबसे बाहर वाला है, इसको आप बोल सकते हो, जैसे मैंने इसको मायोकार्डियम बोला है बीच वाले को, तो जो सबसे बाहर वाला है उसको हम क्या बोलेंगे? एक्टोकार्डियम बोल सकते हैं, एक्टोकार्डियम या फिर एपिकार्डियम, आप इसको एक्टोकार्डियम बोल दो। बीच वाले को हमने मायोकार्डियम बोल दिया है, ठीक है, मायोकार्डियम। और जो सबसे अंदर वाला लेयर है, ये जो येलो कलर का दिख रहा है, इसको हम बोल सकते हैं एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम। तो द वॉल ऑफ द हार्ट इज मेड अप ऑफ 3 layers. One is your ectocardium or epicardium. The second one is your myocardium. Ectocardium or epicardium, ये दोनों सेम है, epicardium. So this is 1 and this is 2 and this is 3. अब मायोकार्डियम जो है, अंदर वाला पार्ट जो है, उसको मैंने बोला था कि ये मेसोडर्म ओरिजिनेटेड है, और जो बाहर वाला है ना एपिकार्डियम, वो भी मेसोडर्म ओरिजिनेटेड है। इतना डिटेल आपको नहीं पढ़ना है, बट जो एंडोडर्म है, जो अंदर के साइड प्रेजेंट होता है एंडोकार्डियम, वो एंडोडर्म से आता है। एंडोडर्म, जर्म लेयर का 3 लेयर था, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। बट योर हार्ट इज मेसोडर्मली ओरिजिनेटेड, क्योंकि ये जो तुम्हारा मायोकार्डियम है एज वेल एज जो तुम्हारा एपिकार्डियम है, ये दोनों मेसोडर्म से बनता है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि योर हार्ट इज मेसोडर्मली ओरिजिनेटेड। इट इज द साइज ऑफ अ क्लोज फिस्ट. इट इज प्रेजेंट इन द thoracic cavity in between the 2 lungs. And another important that the heart is very delicate organ, so the wall of the heart is surrounded by 3 layers: epicardium, myocardium and endocardium. Yes, Om? वो एपिकार्डियम या एक्टोकार्डियम एक्टोडर्म से होना चाहिए ना, बाहर है तो। एंडोडर्म का मतलब है अंदर, तो ये देखो ये येलो वाला अंदर का लेयर बनाया है ना। नहीं मैं मतलब जो लास्ट वाला लेयर है एपिकार्डियम, वो लास्ट है, तो फिर वो एक्टोडर्म से होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको ऐसे रिलेट नहीं करना कि जो हमारे 3 लेयर्स हैं जर्म लेयर्स के, तो वहां से जो बीच वाली चीजें हैं वो मेसोडर्म से आएंगी, जो बाहर वाली हैं वो एक्टो से आएंगी, और जो अंदर वाली है वो एंडो से आएंगी। ऐसा नहीं है। जब आपको एनिमल टिश्यूज पढ़ाया जाएगा तो वहां आपको बताया जाएगा कि किस जर्म लेयर से क्या बनता है। तो हमारे जितने भी एपिथेलियल टिश्यूज हैं, जितने भी एपिथेलियल टिश्यूज हैं, वो सारे के सारे टिश्यूज जो हैं वो आते हैं तुम्हारे एंडोडर्म से। तो बेसिकली आपको बस इतना ही याद रखना है, इसको मिक्सअप नहीं करना है
जब एनिमल टिश्यूज पढ़ेंगे वहां हम पढ़ेंगे कि ये जो 3 जर्म लेयर है ये हमारे बॉडी में क्या क्या बनाते हैं, कौन से ऑर्गन्स बनाते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि जैसा इनका पोजीशनिंग है कि मिडिल वाला मिडिल पार्ट, आउटर वाला आउटर, इनर वाला इनर, ऐसा नहीं है। तो इसको बिल्कुल भी मिक्सअप नहीं करना है। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. नाउ इफ यू सी योर ऑरिकल्स जो होते हैं वो ज्यादा थिक नहीं होते हैं। सबसे ज्यादा थिक जो पार्ट होता है वो हमारा होता है वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल में भी जो सबसे थिकेस्ट पार्ट होता है हार्ट में वो होता है तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल, और इसी वजह से हार्ट थोड़ा सा लेफ्ट के साइड ऐसे टिल्टेड रहता है, लेफ्ट के साइड। तो सबसे थिक जो कवरिंग है, लेयर है, द थिकेस्ट पार्ट ऑफ द हार्ट इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमारा जो थिन मस्कुलर वॉल से बना हुआ है, हमारे जो एट्रिया है वो थिन होते हैं, वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो थिक होता है, बट उसमें भी थिकेस्ट कौन सा होता है, तो दैट इज योर लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहाँ पर चीजें देखो, एक और इंपॉर्टेंट बात, हार्ट ऐसा है कि 2 एट्रिया भी आपस में डिवाइडेड है विद द हेल्प ऑफ द सेप्टा वॉल। मैम ने बताया कि सेप्टा का मतलब होता है वॉल। तो ये 2 एट्रिया के बीच में वॉल है, तो क्या नाम होना चाहिए इसका? इंटर एट्रियल सेप्टा बोल सकते हैं, 2 एट्रिया के बीच में। तो इसको बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टा। उसी तरीके से हमारे 2 वेंट्रिकल्स जो हैं इनके बीच में भी, ये थोड़ा इधर और ये थोड़ा इधर हो गया, इनके बीच में भी सेप्टा होता है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा और सेप्टम। Now there is a separation between right auricle and right ventricle also. Auricle के बीच में, ventricle के बीच में, ये तो है, बट ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में, ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में भी, तो हम उसको क्या बोलते हैं? एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम एंड लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। क्लियर? लिख लेते हैं हम ये बातें। एक्चुअली बार बार बोर्ड चाहिए मुझे, बायो में चाहिए ही होता। Heart is of 2 types. One is myogenic and the another one is neurogenic. Neurogenic मतलब कुछ एनिमल्स में जो हार्ट है उसकी फंक्शनिंग न्यूरॉन्स के थ्रू कंडक्ट होता है। न्यूरॉन सिग्नल्स भेजते हैं तभी वो जाके कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। बट आवर हार्ट, ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक। वो खुद से उसके जो मसल सेल्स है, मायोकार्डियम है, दे आर केपेबल ऑफ ऑटो एक्साइटेबिलिटी। अभी फटाफट वही पढ़ाने वाली हूँ, इंटरेस्टिंग है। चलो हो जाए तो बताओ, मैं बोर्ड रब करूँ, थोड़ा सा पढ़ी उससे रिलेटेड, ताकि वो चीजें तुमके बहुत अच्छे से माइंड में फिट हो जाए कि हमने क्या पढ़ा। देखो मैम ने बोला कि देयर आर layers, 3 layers. The wall of the heart is surrounded by 3 different layers. तो सबसे बाहर का लेयर जो है तुम्हारा, ठीक है, एपिकार्डियम। ये देखो, एपिकार्डियम इज नथिंग बट इट्स द विसरल लेयर। जो तुम्हारा सबसे बाहर का लेयर है ना, पेरिकार्डियम जो है ना, उसी को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, फाइब्रस एंड विसरस। You can see here बच्चा, देखो, पेराइटल लेयर ऑफ सेरस पेरिकार्डियम एंड विसलर लेयर, और इन दोनों के बीच में हमारा क्या है? पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट है। ठीक है, दिस इज, ठीक है, यानी कि जो बाहर का लेयर था पेरिकार्डियल था, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन था, उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, आउटर फाइब्रस और इनर विसरल, और इन दोनों के बीच में हमारा पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट है। दैट मींस दीज लेयर्स आर द पार्ट ऑफ योर एपिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या है? वो एपिकार्डियम को ही 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। उसके बाद जो मेजर पार्ट मैम ने बताया था कि पूरा का पूरा कार्डियक मसल से बना हुआ है हमारा, दैट इज योर मायोकार्डियम। और जो मायोकार्डियम के अंदर एक छोटे से येलो कलर्स के, कि द इनसाइड ऑफ द हार्ट इज अगेन सराउंडेड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ द सेल्स व्हिच आर आल्सो स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स, दे आर योर एंडोकार्डियम। क्लियर नाउ बच्चा? Yes, ma'am.
अब तुम यहाँ देख रहे होगे, यहाँ लिखा हुआ है ट्रेबिकुले कार्ने। ये क्या होता है ये भी मैं आज ही तुम्हें बताऊंगी कि हमारा जो वेंट्रिकल्स होते हैं ना, वेंट्रिकल का वॉल ऑरिकल के वॉल की तरह स्मूथ नहीं होता है. देयर आर मेनी रिजेस प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द वेंट्रिकल्स. वेंट्रिकल के सरफेस पे बहुत सारे रिजेस प्रेजेंट है. रिजेस का मतलब होता है ऐसे प्रोजेक्शंस, ऐसे ऊपर खाबर ऐसे एरिया, जस्ट लाइक हियर, जैसे ये है ना. तो ये जो तुम्हारा वेंट्रिकल है ये इतना स्मूथ नहीं होता है, इसमें वॉल जो होते हैं इसके ऐसे रिजेस प्रेजेंट होते हैं इसमें. एंड दीज रिजेस आर नोन एज ट्रेबिकुले कार्ने. ठीक है, चलो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, ये रब कर लेती हूँ तब तक ये वाली चीजें एक्सप्लेन कर देती. मैंने बोला कि हार्ट इज ऑफ टू टाइप्स, मायोजेनिक एंड न्यूरोजेनिक. हार्ट टू टाइप्स का होता है. वन इज न्यूरोजेनिक and the another one is myogenic, मतलब अपने ही मसल सेल से ओरिजिनेट हो रहा है. न्यूरोजेनिक का मतलब है द कॉन्ट्रैक्शन एंड द रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट और द बीटिंग ऑफ द हार्ट इज कंट्रोल्ड बाय द न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम. बट मायोजेनिक मीन्स they are not controlled by the nervous system. न्यूरॉन से कंट्रोल नहीं हो रहे. अभी के लिए इतना समझो, आगे मैं बोलूंगी कि इनडायरेक्टली कंट्रोल होते हैं, वो डिफरेंट एस्पेक्ट है. दैट इज बीइंग एक्साइटेबल. हमारे जो मसल सेल्स हैं, मायोकार्डियम है, वही एक्साइटेड सेल्स बन जाते हैं. एक्साइटेड सेल्स टू कैरी द इम्पल्स थ्रू आउट द हार्ट. तो सबसे पहले हम एक हार्ट का ऐसे रफ डायग्राम बना लेते हैं. This is right atrium, left atrium, right ventricle, left ventricle. The septa between the right atria and the right ventricle is known as interatrial septum. यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज, जब ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जस्ट अ मिनट, चैट में कुछ है. ओके लिजा, ओके. इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज जब भी हमारा हार्ट डेवलप होता है ना, तभी यहाँ पर बीच में देयर इज नो सेप्टा, क्योंकि लंग्स के पास जाना ही नहीं है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आना ही नहीं है, सब मदर से ही कंट्रोल हो रहा है. अभी तो ये डेवलप हो रहा है, तो यहाँ पर ये सेप्टा नहीं होता है. बट बिफोर बर्थ, बिफोर कमिंग आउट ऑन टू द न्यू वर्ल्ड, ये सेप्टा डेवलप हो जाता है हार्ट में और इसको दो पार्ट में डिवाइड करता है. बट समटाइम्स देयर इज अ स्मॉल डिप्रेशन, एक स्मॉल डिप्रेशन रह जाता है और उस डिप्रेशन को हम बोलते हैं फोसा ओवैलिस. देयर इज अ स्मॉल डिप्रेशन, एक स्मॉल डिप्रेशन रह जाता है जो हमें ये बताता है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में, हमें पता कैसे चला कि देयर इज नो, ऐसा कुछ सेप्टा डिवाइड नहीं किए रहता है राइट एंड लेफ्ट आर्टरिया को. एंड दिस डिप्रेशन व्हिच आल्सो रिमेन्स इन द एडल्ट इज नोन एज फोसा ओवैलिस. एंड दिस सेप्टा व्हिच डिवाइड्स द टू एट्रिया इज नोन एज, और ये किधर प्रेजेंट है? इंटरएट्रियल वॉल पे. किधर है? मैंने वही बनाया है, इंटरएट्रियल वॉल पे. देयर इज अ डिप्रेशन present after birth also, and that is fossa ovalis. And what is this? This is your interatrial septum. तो वेंट्रिकल्स को डिवाइड कर रहे हैं. दिस इज ऑल्सो आवर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. interventricular septum. Sometimes आपने सुना होगा, ऐसे नॉर्मल भाषा में लोग बोलते हैं कि बचपन से उसके हार्ट में होल है. सुना है ऐसा बात?
ऐसी किसी से सुना है? यस मैम। यस। तो जब ही ये पूरा कंप्लीट ज्वाइन होता है तो देयर इज अ डिफेक्ट कि जो ये हमारा ASD है वहां पर इंटरएट्रियल सेप्टम जो है वो कंप्लीट ज्वाइन नहीं हो और वहां पर एक छोटा सा होल रह जाए, जिसकी वजह से देयर इज अ चांस ऑफ मिक्सिंग ऑफ प्योर एंड इम्प्योर ब्लड, और इन द अदर वर्ड यू कैन से दैट देयर इज द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इस डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। अगर यहां रह जाए तो इंटरेस्टिंग है, बायोलॉजी को अगर अच्छे से एंजॉय करके पढ़ा जाए ना तो बायोलॉजी भी इंटरेस्टिंग है, उसको बनाया जा सकता है। तो जब ये डिप्रेशन है, अगर इस डिप्रेशन यहाँ पर अगर इंटरएट्रियल वॉल में अगर छोटा सा होल रह जाता है तो इट्स अ डिफेक्ट, एंड दिस डिफेक्ट इज नोन एज ASD। ASD का मतलब क्या है? एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। और अगर वेंट्रिकल में भी रह गया बाय एनी हाउ, दोनों वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टा बना उसमें कोई होल रह गया छोटा सा, और ये कॉन्जेनाइटल होता है बच्चा। कॉन्जेनाइटल मतलब फ्रॉम बर्थ ऑनवर्ड्स, कॉन्जेनाइटल डिजीज तो इनबॉर्न है, बर्थ से ही है। और अगर वेंट्रिकल्स के बीच में रह जाता है तो हम उसको वेंट्रिकुलर सेप्टा बोलते हैं। क्लियर? मैम यस बच्चा। मैम फिर इससे बॉडी में क्या प्रॉब्लम होती है, मतलब होती है ना, मैंने कॉम्प्लिकेशन? तुझे बताया प्योर और इम्प्योर ब्लड की थोड़ी सी मिक्सिंग हो जाएगी, तो आपको जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अगर यहाँ थोड़ा सा भी होल रहा तो पैसेज हो सकता है। तो हम क्या करते हैं? हम ऑपरेट करके इस होल को फिल कर देते हैं। ऐसे लोगों में कैसे पता चलता है? क्योंकि अब तो साइंस बहुत एडवांस हो गया है बच्चा। अभी तो जब भी बेबी मदर के वुम में होता है तो भी हम बता सकते हैं कि उनको कोई इनबॉर्न डिजीज है क्या, उनको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है क्या, क्योंकि वी यूज्ड टू टेस्ट देम इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर, इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक बार टेस्टिंग करते हैं। और अगर कुछ भी ऐसे शक होता है कि बेबी में कुछ भी हो सकता है, जेनेटिक डिसऑर्डर, डाउन सिंड्रोम एंड समथिंग लाइक दैट, तो फिर वो कंफर्म हो जाता है एंड यू हैव टू काउंसल। वहां पे काउंसलर्स होते हैं जो काउंसिल करते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन द पेरेंट वेदर दे वांट द चाइल्ड टू कम टू दिस वर्ल्ड और व्हाटएवर, दैट इज अनदर एस्पेक्ट। बट अगर ये होल रह गया तो पहले के टाइम में नहीं पता चलता था क्योंकि थोड़ी सी मिक्सिंग हो रही है, नॉर्मल इंसान चल रहा है। बट अगर वही बच्चा या फिर बड़े होके वो बहुत हैवी वर्क नहीं कर सकता क्योंकि ऑक्सीजन को उसकी कमी होती है, ऑक्सीजन उसको उतना नहीं मिल पाता क्योंकि उतने ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसके पूरे ऑर्गन्स को सप्लाई नहीं हो पाते क्योंकि उसमें मिक्सिंग है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है। तो समटाइम्स व्हाट हैपन, अगर बहुत तेज वो भाग रहा है तो उसकी पूरी सांसें ऊपर नीचे होने लगती है। फिर पेरेंट्स को लगता है कि कुछ तो प्रॉब्लम है, फिर जाते चेक वगैरह कराते थे तो उनको पता चलता था ओ इट्स अ कॉन्जेनाइटल डिजीज, देयर इज अ होल इन बिटवीन द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। यहाँ पर एक होल रह गया है जिसकी वजह से जो ये प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि जब भी हम एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात बोलते हैं बच्चा, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर राइट वेंट्रिकल से आपने देखा होगा कि हमारा पल्मोनरी आर्क निकलता है, पल्मोनरी एरोटा निकलता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा मेन एरोटा निकलता है, तो इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज दे आर क्रॉस टू ईच अदर, ज्वाइंट होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज पे विद द हेल्प ऑफ अ लिगामेंट एंड दैट इज नोन एज डक्टस। डक्टस हम उसको बोलते हैं। ये यहाँ से जो हमारे दो मेजर आर्टरीज निकलते हैं वो क्रॉस्ड ईच अदर करते हैं, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं एट अ प्लेस, and at this place a ligament is present known as ligamentum arteriosum। बस आपको बता रही हूँ समझने के लिए कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या चीजें चलते रहती है और हमारे जब हम बॉर्न हो जाते हैं तब चीजें चेंज हो रही है। बट वहां पर ही कुछ डिफेक्ट्स रह सकते हैं इफ द वॉल इज नॉट प्रॉपरली बीइंग फॉर्म्ड। अगर यहाँ होल रह जाता है तो हम इसको बोलते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, क्योंकि सेप्टा में डिफेक्ट है। इट इज नोन एज दिस होल, दिस डिफेक्ट इज नोन एज एट्रियल सेप्टा डिफेक्ट। ओके बेबी, ओके बच्चा। और अगर वेंट्रिकल्स में रह जाता है तो अगर वेंट्रिकल में रह जाएगा तो देयर इज अ चांस ऑफ मिक्सिंग, जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और यहाँ थोड़ा सा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो दोनों आपस में मिल सकते हैं। तो अगर वेंट्रिकल्स में रह जाता है तो हम उसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट।
ventricular septal defect. ज्यादातर आपको इस वेंट्रिकल्स में देखने के लिए मिलेगा इट्स अ कॉन्जेनाइटल सेप्टम, तो कॉन्जेनाइटल डिजीज, ये कॉन्जेनाइटल सेप्टम है क्योंकि बर्थ से ही है। और यहाँ पर हमारे राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल के बीच में आपको एक डिप्रेशन दिखेगा, ओवल डिप्रेशन दिखेगा, दैट इज फोसा ओवालिस, ठीक है। बट कभी कभी ये पोर थोड़ा सा ओपन रह जाता है और इसको होल बना देता है एंड इट लीड्स टू अ डिफेक्ट नोन एज ASD, एस्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, ASD। तो अगर एट्रियल सेप्टम में होगा तो हम उसको ASD बोलेंगे, वेंट्रिकुलर सेप्टम में होगा तो VSD बोलेंगे, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पर तो ये ओपन रहते हैं और एक हल्का सा डिप्रेशन भी रहता है, बट अगर वेंट्रिकल में रहता है तो वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट इज द मोस्ट कॉमन होता है ये क्या, congenital heart disease. Is the hole filled with a chip? Actually ये क्या है, वॉल है और पूरा का हार्ट मसल्स से बना हुआ है, तो वी कैन जस्ट वो जो स्मॉल सा होल है वहां पे स्टिचिंग करके भी उनको फिल कर दिया जाता है, या फिर आजकल तो क्या है, इतना डेवलप हो गया है मेडिकल साइंस के, विदाउट ऑपरेशन यू कैन ऑल्सो फिल द होल्स विद द हेल्प ऑफ मेडिकेशन। स्टेम सेल्स, यस हो, बट यहाँ पर स्टेम सेल्स की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, ये नॉर्मली भी हो जाता है क्योंकि ये मस्कुलर पार्ट है आपके बॉडी की, किसी भी पार्ट से हम मसल्स ले सकते हैं, थाई से बहुत ज्यादा मसल जिस पार्ट में, ओके। पर वो मैच कैसे करेगा थाई का? हमारी बॉडी का है ना, हमने किसी और का थोड़ी लिया, हमने अपना ही लिया ना। पर थाई में होगा स्केलेटल या स्मूथ और उधर है कार्डियक। यस, कार्डियक। तो कार्डियक मसल्स जो है उसका जो लेयर, अब ये हमें देखना पड़ेगा कि हमारा जो ये एटल, मैंने पहले ही बताया, यस ठीक है, चलो ये बात इग्नोर करते हैं। बात ये है कि बहुत छोटा सा होल है, तो जब ऑपरेट भी किसी चीज को किया जाता है तो क्या करते हैं, फिर हम उसको सिलाई कर देते हैं, फिर धीरे धीरे वो मिक्स हो जाते हैं, वो स्किन एक जैसा दिखने लगते हैं। तो यहाँ पर भी जब ये नॉर्मल प्रोसेस हो रहा था, जो हार्ट का डेवलपमेंटल प्रोसेस था, वहां पर इसको एक दूसरे से ज्वाइन हो जाना था, बट बाय एनी हाउ ड्यू टू सर्टेन डिफेक्ट्स इन द डेवलपमेंटल प्रोसेस एक छोटा सा होल रह गया, तो बेसिकली हम इसको सर्जरी से ठीक कर देते हैं बाय स्टिचिंग एंड ऑल, ओके। बट अभी मैंने सुना है मेडिकेशन से भी हो जाता है इन बेबीज, अगर बच्चा बहुत छोटा है और तभी पता चल गया तो हो जाता है बेबीज में, ठीक है। हाँ, आई एम वेरी सॉरी, स्केलेटल मसल्स तो यूज ही नहीं कर सकते, थाई मसल्स यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल में थोड़ा सा डिफरेंस है। कार्डियक मसल्स जो है ना, अगर उसकी कैरेक्टरिस्टिक जब मैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगी तो मैं ये आपको बताऊंगी कि कार्डियक मसल्स हैज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थोड़ा सा स्केलेटल मसल का और थोड़ा सा स्मूथ मसल्स का, दोनों का ले लिया है। स्मूथ मसल का क्या लिया है कि स्मूथ मसल्स जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। बट जैसा कि हमारे स्केलेटल मसल्स में होता है, स्ट्राइटेड होते हैं वो, हमारा कार्डियक मसल्स भी स्ट्राइटेड है। हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, उसके बाद बहुत सारा न्यूक्लियस होता है, उसको बहुत ज्यादा काम करना है। बट आपका जो कार्डियक मसल्स है वहां पर सिर्फ एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में, वहां मैं और अच्छे से आराम से बताऊंगी इंटरकैलेटेड डिस्क क्या होता है, ब्रांचिंग कैसे होती है इन सेल्स की, एवरीथिंग। बट हम ये पार्ट पढ़ लिए कि दे हैव डिफेक्ट्स और ऐसे वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसे भी सेपरेशन है विद द वॉल्स और ऐसे भी सेपरेशन है। और जब भी एट्रियल और वेंट्रिकल के बीच में सेपरेशन है तो मैम ने बोला कि यहाँ पर एक छोटा सा डोर है जो ओपन हो जाता है, जब इधर ब्लड का प्रेशर बहुत हाई हो जाता है तो ये डोर ओपन हो जाता है और ब्लड इधर से इधर आ जाता है, ब्लड इधर आ गया। अब ब्लड जब इधर आ गया, राइट वेंट्रिकल में आ गया, तो फिर से ये वापस नहीं चला जाए ऊपर की तरफ राइट ऑरिकल में, तो ये डोर क्लोज हो जाता है। अभी मैं ऐसे ही बताऊंगी कि ये डोर क्लोज हो जाता है, इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, एंड दिस इज नोन एज वल्व्स। जब भी मैं आपको लिम्फ के बारे में बता रही थी तो वहां के वेसल्स के बारे में मैंने बताया था कि वहां पर ज्यादा वल्व्स होते हैं एज कंपेयर टू द वेन्स। वेन्स में भी वल्व्स होते हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वेंट्रिकल्स में भी वल्व्स प्रेजेंट है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। और
राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व प्रेजेंट है, राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड, बिकॉज इट्स मेड अप ऑफ 3 मस्कुलर फ्लैप्स। ट्राइकस्पिड नाम कहाँ से आया? क्योंकि यहाँ पर 3 मस्कुलर फ्लैप्स प्रेजेंट है। एंड द राइट लेफ्ट ऑरिकल एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में भी एक डोर होता है। जैसे ही ब्लड लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, ये डोर भी क्लोज हो जाता है। एंड इट्स मेड अप ऑफ 2 मस्कुलर फ्लैप से बना हुआ है, क्योंकि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मसल से ही बना हुआ है, फ्लैप ऐसे करके कुछ ढका हुआ चीज। तो दैट इज नोन एज बाइकस्पिड वाल्व। तो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व एंड लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में दैट इज योर बाइकस्पिड, and this is also known as mitral valve. Valve is also present. अब देखो तीसरी वाल्व कहाँ होनी चाहिए? जब ये राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी बनाता है और जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल से मेन एरोटा बनाता है, तो भी तो बैक फ्लो नहीं होना चाहिए। तो वहां पर भी वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं और उसको हम बोलते हैं सेमी लूनर वाल्व्स। सो बाइकस्पिड को ही मिट्रल भी बोलते हैं, ये याद रखना, ठीक है। तो इन बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी एंड दिख रहा है, एंड left ventricle and main aorta, इनके बीच में भी valves present है and they are known as semi lunar valves। अब आज का एक लास्ट टॉपिक बता देती हूँ, अभी ये पीछे ना जाए इसके लिए valves तो है ही, बट मान लो कि बहुत जोर से प्रेशर लगा दिया, बहुत जोर से प्रेशर लगा दिया तो जा सकता है। बट अगर हमने उस दरवाजे को बहुत सारी रस्सियों से ऐसे पकड़ के बांध के रखा है, तब तो बहुत ज्यादा ताकत लगेगा, तभी वो खुलेगा। तो उसी तरीके से हमारा जो ये वेंट्रिकल्स होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे मसल्स होते हैं जो वॉल ऑफ द वेंट्रिकल से यहाँ पर अटैच होते हैं। ये मैं कल पढ़ाऊंगी, क्योंकि अभी पढ़ाऊंगी तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 डिफरेंट चीजें मुझे तुम्हें पढ़ानी होगी। अभी जैसे मैंने आपको ट्रेबिकुलाई, कॉर्डे टेंडिने, यस वेरी गुड, पैपिलरी मसल्स, ये चीजें आएंगी, इनका रोल है। पैपिलरी मसल्स, जैसे मैंने बताया कि वेंट्रिकल्स जो होता है वो स्मूथ नहीं है, वहां पर बहुत सारे रिजेस हैं, जिसको मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया था, ट्रेबिकुले। वहां पर बहुत सारे स्पेशल मसल्स भी प्रेजेंट हैं, विच आर नोन एज पैपिलरी मसल्स। और ये पैपिलरी मसल्स जो हैं, कॉर्डे टेंडिने, नाम से ही पता चल रहा है, कॉर्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, टेंडिने जो है थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर है जो पैपिलरी मसल से ऐसे ज्वाइन है। तो जैसे ही अगर वो पीछे जाने की कोशिश करता है तो ये ऐसे खींच लेता है, डोर बंद है, वी विल प्रिवेंट द बैक फ्लो। कल के लेक्चर में एक अच्छा सा डायग्राम दिखा के ये चीज बता दूंगी। यस, कॉर्डे टेंडिने एंड पैपिलरी मसल्स वेंट्रिकल्स के वॉल पे प्रेजेंट है, वेंट्रिकल से वॉल से अटैच्ड है। और यहाँ पर जहां पर आपका इंटर एट्रियल वेंट्रिकल सेप्टम है, वहां से अटैच्ड है, ताकि आपका वेंट्रिकल का ब्लड जो है वो वापस एट्रिया में नहीं फ्लो करे। नाउ जो ये बात रह गई थी ये कंप्लीट कर देती हूँ, ठीक है। जस्ट अ मिनट, हमने न्यूरोजेनिक हार्ट की बात की, बट हमारे बॉडी में इन केस ऑफ मैमल्स, इन केस ऑफ ह्यूमंस, हम मायोजेनिक है बच्चा, हम न्यूरोजेनिक नहीं है। हमारा हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन एंड द रिलैक्सेशन नॉट डिपेंड्स अपॉन द नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स पे डिपेंड नहीं करता है। इट्स फाउंड इन इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स में आपको देखने के लिए मिलेगा, आपके आसपास जितने भी एनिमल्स आपको ऐसे दिखते हैं, रेंजिंग फ्रॉम बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फिबियंस, फिशेस, वो सारे मायोजेनिक हैं। इनवर्टिब्रेट जैसे ऑर्थोपॉड्स, एनालिड्स, इनके जो हार्ट होता है उनका हार्ट होता है न्यूरोजेनिक। बट आवर हार्ट, वर्टिब्रेट्स के हार्ट जो होते हैं वो कैसे होते हैं? मायोजेनिक।
because they are being controlled. The heartbeat is originated by a special group of muscles that are present inside the heart. वो differentiate हो जाते हैं in such a way so that they can excite the muscle cells in order to carry the impulse throughout the wall of the heart. ये मैं कल डिटेल में बताऊंगी कि किस तरह से some of the muscular tissues they differentiate and become auto excitable, खुद से excite हो जाते हैं, and how they conduct the impulses throughout the surface of the heart, as well as जो आज मैंने ये कॉर्डेट टेंडिनी पैपिलरी मसल्स के बारे में बातें की, उसका भी एक अच्छा सा डायग्राम दिखा के कल मैं वो आपको एक्सप्लेन करूंगी. ठीक है, तो मायोजेनिक हार्ट जो है ये वर्टिब्रेट्स में होता है बच्चा, और न्यूरोजेनिक जो होता है वो इनवर्टिब्रेट्स में, लोअर एनिमल्स में आपको देखने के लिए मिलेगा. एनालिड्स, आर्थ्रोपॉड्स, ठीक है. तो कल हम यहाँ, यस लीजा मैम एक छोटा सा डाउट था, एक न्यूज में आया था कि पिग हार्ट इज ट्रांसप्लांटेड इनटू ओल्ड मैन, तो पिग ब्लड इज सेम एज दैट ऑफ ह्यूमन ब्लड, एंड जब जॉइंट्स आर्टरीज और वेन्स को करते वुडंट बी अ डिफिकल्ट टास्क? वेरी डिफिकल्ट टास्क, वो बहुत लॉन्ग चलता है ये ऑपरेशन. इट्स नॉट 1 or 2 hour कंटिन्यूअस फॉर 24 hours 36 hours कंटिन्यू चलते हैं 2-3 दिन तक, क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं इन सर्जरीज में. जब भी हम आज के डेट में तो इजीली हो जाता है क्योंकि देयर इज लेप्रोस्कोपी एंड ऑल, बट पहले क्या होता था, देयर इज ओपन हार्ट सर्जरी, वो भी बहुत मुश्किल था आज से 30-40 ईयर्स पहले. बट जब भी हम हार्ट ट्रांसप्लांट की बात करते हैं तो यस डेफिनेटली वी हैव टू टेक केयर ऑफ अ नंबर ऑफ थिंग्स, क्योंकि अंदर का स्ट्रक्चर ऑल्दो बहुत छोटा है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, बट वहां पर बहुत सारी चीजें प्रेजेंट हैं, तो उन सब का केयर करते हुए वी हैव टू डू ऑल द थिंग्स. और जरूरी नहीं है अगर आपने पिग का हार्ट लिया तो, क्योंकि वो मसल सेल्स है ना, मस्कुलर सेल्स है ना, और इम्यून सिस्टम की मैंने इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताई हैं कि दे कैन डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, क्योंकि हर सेल की अपनी नेम प्लेट होती है. दैट मीन्स उसके सरफेस पे स्पेशल रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. एंड मैम ब्लड सेम होते हैं? ब्लड, अगर हम ब्लड की बात करें तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि जब तक ये बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग हमने डेवलप नहीं किया था बच्चा, तब तक जितने भी ये इंसुलिन वगैरह के इंजेक्शंस होते हैं ना, हार्मोन्स, वो हम पिग के, यस, हॉर्स के, इनसे लेते थे. तो देयर इज सर्टेन सिमिलैरिटीज हैं, हमारे बीच में सिमिलैरिटीज हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट ओनली हो सकता है, इट्स नॉट इम्पॉसिबल. ठीक है, तो इंसुलिन वगैरह भी हम उधर से ही लेते थे. मैम इतना लंबा ऑपरेशन कैसे कर लेते? देयर इज अ पैनल बच्चा, पैनल, एक डॉक्टर्स नहीं होते, बहुत सारे डॉक्टर्स एक साथ. आपने बहुत सारे सोशल मीडिया पे ऐसे देखे होंगे बहुत से टायरिंग फेसेस कि डॉक्टर्स कंटिन्यूअस इतने घंटे तक ऑपरेशन कर रहे थे और अभी वो बिल्कुल टायर्ड होके कोई इधर पड़ गया, कोई इधर पड़ गया. तो यस, देयर आर सर्टेन ऑपरेशंस व्हिच आर वेरी टीडियस, बहुत लॉन्ग आवर्स तक चलते हैं, एंड दैट इज द ग्लोरी ऑफ दिस प्रोफेशन. बट अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो सोचो कि उसको कितनी खुशी होती होगी. इज इट कि मैंने किसी की जान बचा ली, मैंने इतना अच्छा काम किया. So being a doctor is not just a profession, it's just a वो एक inner feeling. Yes, it's a passion, it's an inner feeling, and if you want to be, तो फिर आप पूरी दुनिया भूल जाते हो. You are just committed to that part only. ठीक है, चलो कल इसको कंटिन्यू करते हैं. हमारा हार्ट मायोजेनिक है, कैसे है ये मैं कल पढ़ाऊंगी. चलो, बाय ऑल ऑफ यू.